My lovely students, welcome to Mathological. This is the ninth session of CAT DILR series. Start करते हैं session. And I hope that you have subscribed to the channel. And if you have any questions or queries regarding your preparation, you can message me on Telegram at adityakt. So another beautiful set for practice. This is the set, and then the set is followed by 5 questions. Pause the video, try to attempt it yourself first, then only watch the solution. Okay, and read the constraints carefully, read the questions carefully before attempting it. तो पढ़ते हैं एक बार सेट को. As discussed, Limited is a company with 6 departments: HR, sales, marketing, operations, finance, and customer service. 6 departments in total. और हमें फिर departments का कुछ data given है. So accordingly, each department employs 3 categories of personnel: directors, managers, and associates. So there are 3 types of employees. Some are directors in every department, directors, managers, and associates. Okay, every department has at least one employee of each category. So for every department, there must be at least one director, there must be at least one manager, and there must be at least one associate. और क्योंकि 6 departments in total है, so overall we must have at least 6 directors, at least 6 managers, and at least 6 associates overall in that company. Emails from the departmental ID can be sent by any employee. An email sent by a director, a manager, and associate from the departmental ID is received by 5 departments, 3 departments, and 2 departments respectively. So if a director sends an email, it is sent to the 5 departments. If a manager sends that email, 3 departments it is sent to, and if associate sends an email, it is sent to 2 departments. On Monday, every employee in the company sent an email. The table given shows the number of emails sent and received by different departments on that day. कुछ values missing है यहाँ पे, और that is why वहाँ पे उन values में हमने mention किया ABCD. Okay, so email sent in total, that is given, that is equal to 50. एंड emails received by each department का वैल्यू गिवन है, तो उनको ऐड करके emails received in total का वैल्यू भी निकाल सकते हैं. क्या आएगा? 20 + 25, 45 + 24, that is 69 + 28, so that will be equal to 97 + 20, 117 + 19, 136. Total 50 emails have been sent and 136 emails have been received. Important condition that every employee of the company has sent exactly one email on Monday. So number of emails in total should be equal to number of employees. क्या ये बात समझ पा रहे हो? Because every employee has sent exactly one email and every employee has sent an email as well. So since both conditions are met, that every employee has sent one email, ठीक है, and every employee has sent email as well. So that is why number of emails sent will be equal to number of employees. Now some employees will be directors. Let us say D are directors. Some will be managers. So let us say M are managers and A are associates. So we can say that D plus M plus A, this will be equal to 50. And total numbers of emails received in total, this should be equal to, since every mail sent by a director is sent to 5 departments in total, यानी कि अगर directors D हैं, तो 5D will be total number of emails received on behalf of directors. Similarly, 3M will be total number of emails received for managers, and 2A will be total number of emails received sent by associates. Total number should be equal to 136. तो क्या ये दो इक्वेशन समझ पा रहे हो? D plus M plus A, that will be 50, total number of employees, and 5D plus 3M plus 2A, that will be equal to 136, because एक डायरेक्टर ईमेल भेजेगा, so that email will be sent to 5 departments in total. तो 5D हो जाएगा नंबर उसका ईमेल रिसीव्ड का. सिमिलरली एक मैनेजर ईमेल भेजेगा, so that email will be sent to 3 departments. 3M हो जाएगा नंबर उनका, और if associate is sending an email, so that email will be sent to 2 departments, so 2A will be the number for those particular emails received. So 5D plus 3M plus 2A, that is equal to 136. अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो D plus M plus A, that was 50. 5D plus 3M plus 2A is equal to 136. So we can multiply the first equation by 2 और subtract करते सेकंड इक्वेशन में से, तो हो जाएगा 2D plus 2M plus 2A is equal to 100. Now subtract this. So value हमारा आ जाएगा 5D minus 2D, that is equal to 3D plus M, and 2A is getting cancelled out. 3D plus M is equal to 36.
तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन डी एंड एम। यहाँ से मल्टीपल सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट जो हमने स्टार्ट में ही देखा था कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन द कंपनी मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 6, total number of managers in the company must be greater than equal to 6 and total number of associates in the company must be greater than equal to 6. तो सॉल्यूशंस जब हम निकालेंगे फॉर दिस इक्वेशन 3d plus m equal to 36, तो d should be greater than equal to 6, m should also be greater than equal to 6. तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू m का क्या लेंगे? हम 6 लेंगे। तो 6 should be the minimum value for m, एटलीस्ट 6 होगा, 6 या 7, 6 पे सॉल्यूशन आ रहा है क्या? इफ m is equal to 6 तो 36 minus 6 30 आ गया, 3d is equal to 30 यानी कि d will be equal to 10. If there are 6 managers, 10 must be number of directors. Second value क्या आएगा? तो second value of d will depend on coefficient of m. So second value will be 10 minus 1, which is equal to 9. Or second value of m will depend on coefficient of d, which is equal to 3. So this will be 6 plus 1 plus 3, that is equal to 9. So first solution है 10 and 6, 10 directors and 6 managers. Second case will be when there are 9 directors and 9 managers. अब ऐसे ही प्रोसेस करते रहो, 10 के बाद 9 है, 9 के बाद आएगा 8, 1 का डिक्रीज आएगा और यहाँ पे 6 के बाद 9 है प्लस 3 यानी 12 हो जाएगा, 8 एंड 12 थर्ड सॉल्यूशन. नेक्स्ट 7 एंड 15, देन नेक्स्ट 6 एंड 18. और क्योंकि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 6, दिस शुड बी द लास्ट सॉल्यूशन. इसके बाद का सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन का तो आ जाएगा कि 5 एंड 21, बट दैट विल नॉट अप्लाई इन अवर केस. So there are 5 possible solutions. Number of directors can be anywhere from 6 to 10 and accordingly number of managers can be anywhere from 6 to 18. This would be our case. क्या यहाँ तक बात समझ पाए? ठीक है, तो ये तो हमने अपना बेसिक अरेंजमेंट जो सेट का था वो देख लिया. अब अकॉर्डिंगली हमें नंबर ऑफ एसोसिएट भी निकालने पड़ेंगे बिकॉज टोटल सम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डी प्लस एम प्लस ए दैट इज इक्वल टू 50. इफ डी इज इक्वल टू 10, एम इज इक्वल टू 6, तो नंबर ऑफ एसोसिएट्स क्या आ जाएगा? टोटल 50, 10 plus 6 16, तो नंबर ऑफ एसोसिएट विल बी इक्वल टू 34. सेकंड केस इफ डी इज 9, एम इज 9, टोटल आ गया 18, 32 मस्ट बी एसोसिएट्स. पैटर्न देख लो, 34 के बाद 32 आया तो नेक्स्ट आएगा 30, 28 and then 26. So these are 5 possible cases. Okay. अब क्वेश्चंस देखते हैं. और क्वेश्चंस भी हमारे क्या कह रहे थे? क्वेश्चंस भी एग्जैक्टली इफ व्हाट कुड बी. क्वेश्चंस वैसे भी डायरेक्टली हमारे अनसर्टेन ही थे, वहां से भी समझ में आ रहा था, जो हालांकि पहले मैंने एनालाइज कर लेना चाहिए था, तुम्हें डिस्कस करना चाहिए था, पर अभी देख लेते हैं कि क्वेश्चंस हमारे जो 5 क्वेश्चंस वो क्या थे. इफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज लेस देन, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल केसेस बनेंगे हमारे. व्हाट कुड बी इफ यानी कि सारे के सारे क्वेश्चंस इफ या कंडीशन से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे मल्टीपल केसेस बनने ही वाले थे. तो हमने जो कुछ भी अभी तक किया है सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है. अब एक और बात जो कि ऑब्जर्व करनी है इस सेट में, देखो ईमेल सेंट में हमारे पास कुछ वैल्यूज मिसिंग है. जैसे फॉर HR number of employees is not given, for marketing number of employees is not given, for operations number of employees is not given, for finance number of employees is not given. So there might be some relevance for this as well. Okay, क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर अकॉर्डिंगली समझते हैं चीजों को. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज लेस देन नंबर ऑफ मैनेजर्स एंड नंबर ऑफ मैनेजर्स इज लेस देन नंबर ऑफ एसोसिएट्स, देन व्हाट कुड बी द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एसोसिएट्स इन द कंपनी. सो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन कंडीशन क्या है हमारा? डायरेक्टर्स शुड बी लेस देन number of managers and managers should be less than number of associates. Less than or equal to नहीं है, exactly less than है. Directors का number should be less than managers and managers का number should be less than associates, और हमें चाहिए maximum possible number of associates. तो what can be maximum value of number of associates? तो 5 केसेस हमारे बने. अब किस केस में ऐसा आ रहा है कि डायरेक्टर्स आर लेस देन मैनेजर्स एंड मैनेजर्स आर लेस देन एसोसिएट्स. ओके, तो दीज आर द लास्ट 3 केसेस में हो रहा है ऐसा, when directors are either equal to 8 or 7 or 6. But हमें चाहिए maximum number of associates, so that will be in this case when there are 8 directors, 12 managers and 30 associates. So maximum value for associates must be equal to 30. So answer for the first question will be equal to 30. Okay. Second question, what could be the maximum possible number of managers in the company? Second है maximize करना है हमें number of managers को. There are total 5 cases. Number of managers maximum कितना हो सकता है? Can be 18. Because there is no other condition. Number of managers maximum can be equal to 18. So this was also a straightforward question. Third question, what could be maximum possible number of directors in the company if it is known that none of the departments has more than 5 associates? तो important condition क्या है? हमें चाहिए directors को maximize करना है. And the condition is that none of the department has more than 5 associates. So number of associates in any department will be less than equal to 5.
ओके, फिर सो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को हमें मैक्सिमाइज करना है और एसोसिएट्स कैन बी लेस देन इक्वल टू 5। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है? अगेन 5 केसेस है हमारे पास, एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मैक्सिमम कैन बी इक्वल टू 10, बट इफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर इक्वल टू 10, इफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर इक्वल टू 10, तो एसोसिएट्स मस्ट बी इक्वल टू 34। बट क्या ये केस हमारा पॉसिबल भी होगा? ठीक है, इन सारे के सारे केसेस को अफ्रेश लिख लेते हैं, फिर समझते हैं बातों को। तो पहला केस हमारा क्या है? डायरेक्टर्स merges associates. The first case was 10, 6 and 34. Second was 9, 9 and 32. Third was 8, 12, 30. And then फिर हमारे पास नंबर था 7 and 6, 15 and 18, 28 and 26. So हमने ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आ रहा है हमारा इन दिस फर्स्ट केस, बट इन दिस फर्स्ट केस नंबर ऑफ एसोसिएट्स इज इक्वल टू 34. इज इट इवन पॉसिबल? बिकॉज एक एडिशनल कंडीशन हमारा ये है कि नन डिपार्टमेंट्स हैज मोर देन 5 एसोसिएट्स। तो अगर हम हर एक डिपार्टमेंट में 5 एसोसिएट्स रख लें और टोटल 6 डिपार्टमेंट्स हैं, if every department has maximum associates, यानी कि every department has 5 associates, तो 6 into 5 यानी कि 30 associates will be there in total. So number of associates will be less than equal to 30. Isn't it so? ठीक है, नंबर ऑफ एसोसिएट्स हमारा लेस देन इक्वल टू 30 होगा, तो यानी कि इस केस में 34 तो पॉसिबल ही नहीं है, सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो क्या सेकंड केस भी पॉसिबल नहीं होगा? 9 वाला, 9 एक्सेस भी नहीं हो सकता बिकॉज वहां पे भी हमारा एसोसिएट्स 32 मेंशन्ड है। क्या थर्ड केस पॉसिबल होगा? लग तो रहा है, लग तो रहा है, बट अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहीं पे एक ट्रैप है। वो ट्रैप क्या है कि अब हम एक बार ईमेल सेंड्स को भी ऑब्जर्व करते हैं। ईमेल सेंड वैल्यूज हमें गिवन है फॉर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एवरी डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट में वी हैव ए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, वहां का तो डेटा हमें नहीं पता। ठीक है, सेल्स में देयर आर 9 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, मार्केटिंग में बी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेशंस में सी, फाइनेंस में डी और कस्टमर सर्विस में 6 है। जहां पे हमें डेटा नहीं गिवन है वहां पे तो हम वैल्यूज ऐसी मान सकते हैं कि हमारी वैल्यूज मैक्सिमाइज हो पाए। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या आ रहा है? सम आ रहा है 9 + 6 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 35। और कोई एडिशनल कंस्ट्रेंट तो है नहीं। हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ एवरी डिपार्टमेंट शुड हैव एज मैक्सिमम एसोसिएट्स एज पॉसिबल, क्योंकि तभी हमारा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मैक्सिमाइज हो पाएगा। ठीक है, तो एसोसिएट्स अगर हम सब में 5 रख लेते हैं, अगर 5 एसोसिएट्स हैं हर एक डिपार्टमेंट में, तो इन दैट केस मैनेजर्स को मिनिमम रखेंगे क्योंकि हमें डायरेक्टर्स को मैक्सिमाइज करना है। तो अगर 5 एसोसिएट्स हैं इन एवरी डिपार्टमेंट, तो मैनेजर्स वी कैन हैव एग्जैक्टली 1 और डायरेक्टर्स फिर जितने भी मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, सो मिनिमम 1 तो होगा, यानी कि अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 7 रखते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन अ डिपार्टमेंट, तो वहां पे हम एसोसिएट्स को 5 कर सकते हैं। ठीक है, सो ए बी सी डी, क्योंकि 4 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, 4 नंबर्स हैं, 4 डिपार्टमेंट के नंबर्स हैं और टोटल 35 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 7 7 7 करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, 7 7 7 कर दिया और इन 7 में क्या होगा? हर एक में 5 एसोसिएट होंगे और फिर जो बच गया हमारा 21 के बाद में 14, वो सारा के सारा डिपार्टमेंट डी में रख दिया। या अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो ए बी सी डी की वैल्यूज तो हम कुछ भी मान सकते हैं, वहां पे कोई हमें कंसर्न नहीं आ रहा है। ठीक है, वहां पे फिलहाल इस क्वेश्चन में कहीं कोई कंसर्न नहीं आ रहा है। जस्ट इन केस मान लो हमारा वैल्यू आता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दैट वाज इक्वल टू लेट अस से 19। अगर ये 19 होता तब हम 7 7 डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाते। अगर मैं 3 डिपार्टमेंट में 7 7 किया होता तो फिर चौथे में नेगेटिव हो गया होता, तो पॉसिबल ही नहीं था। यानी कि इस केस में भी हमारे पास कंस्ट्रेंट एडिशनल आता कि हम नंबर ऑफ एसोसिएट्स को मैक्सिमाइज करके 5 लेके नहीं जा सकते थे। 5 लेके नहीं जा सकते क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में मिनिमम 3 एम्प्लॉइज तो होंगे, कम से कम 3 तो रखने पड़ेंगे। इजंट इट सो? हाँ, ये जरूर कर सकते हैं, 3 3 3 रख दिया मान लो, तो बचा कितना अपना? 10 बच गया। बट 10 में हमें पता है कि 5 एसोसिएट्स कर नहीं पाएंगे, तो हमें 3 3 को बढ़ाना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम 7 पे लेके जाते, उसको 7 पे लेके जाते और बाकियों को भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज करते। मतलब 2 पे हमने 7 7 कर दिया, नहीं 2 पे 7 नहीं कर सकते बिकॉज एक पे 7 आ गया, एक पे 6 आ गया और 2 पे 3 3 एम्प्लॉइज आ गए। यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं उस केस में 5 एसोसिएट्स, and in this department there would have been 4 associates, and in this department exactly 1 associate, and in this department also 1 associate। लेकिन in this case 4 डिपार्टमेंट्स हमारे मिला के 5 + 4 + 1 + 1 यानी कि टोटल 11 एसोसिएट्स होते हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट क्या ये बात समझ पा रहे हो कि अगर हमारे पास एडिशनल कंस्टेंट होता, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टोटल 35 नहीं बचते, 19 बचते, तो हमें अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता एसोसिएट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? पर यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस चीज को इग्नोर करते हैं। पर अगर ये बात समझोगे तो एक बात और समझ में आई होगी कि हम ऑब्जर्व करें वैल्यू को, जहां पे वैल्यूज गिवन है। फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट में वैल्यू गिवन है हमें 9, 9 वैल्यू गिवन है, तो हम एसोसिएट्स यहाँ पे 5 रख सकते हैं। ठीक है, मैनेजर 1 ही रखेंगे मान लो, तो डायरेक्टर हमारे अकॉर्डिंगली हो जाएंगे और जो इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से हमने पूरा सॉल्यूशन अपना निकाला भी हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे डायरेक्टर्स कितना पॉसिबल है? 3 पॉसिबल है।
होगा नहीं होगा वो तो एक डिफरेंट बात है कि हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसके लिए तो हमने केसेस बनाए हुए हैं पूरे के पूरे ओवरऑल के लिए, ठीक है, बट ये एक पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक है, होगा नहीं हो पाएगा, ये तो ओवरऑल हमें बता रहा है। बट जिस डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉइज इज लेस देन 7, वहां तो हमें पक्की बात पता है कि वहां पे हम 5 एसोसिएट्स नहीं बना पाएंगे, isn't it so? So that is one department, Department of Customer Service. So in that department, we have 6 employees in total. There must be at least one director, there must be at least one manager, or associates maximum can be equal to 4. तो बाकी 5 डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, ABCD की वैल्यूज हम ले सकते हैं 7, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और एक वैल्यू सेल्स का हमें 9 गिवन ही गिवन है, तो वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक डिपार्टमेंट में कंसर्न आएगा, इन कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट वी कैन नॉट हैव मोर देन 4 एसोसिएट्स इन एनी कंडीशन। सो बचे हुए 5 डिपार्टमेंट्स हम 4 एसोसिएट्स 5 ले लिया हमने, बट स्टिल इन कस्टमर सर्विस वी कैन एट मैक्स हैव 4 एसोसिएट्स, यानी कि टोटल मैक्सिमम एसोसिएट्स कितने हो सकते हैं? 5 into 5 plus 4 यानी कि 29 is maximum possible value of number of associates. So they cannot even be equal to 30. तो 30 वाला केस भी पॉसिबल नहीं होगा। तो द ओनली केस पॉसिबल विल बी when we can maximize number of actors that is equal to 28 associates, because 29 वाला कोई केस हमारा बन ही नहीं रहा है। So maximum number of actors in this case will be equal to 7. Our answer for this case will be equal to 7. That maximum number of actors in this case will be equal to 7. क्या ये बात क्लियर है? So this was a very good question in that context. क्या क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next one, if 29 emails received cumulative across all the departments were sent from departmental ID of marketing department, what could be the maximum number of employees in the marketing department? So 29 emails were sent, basically received by all the departments, and those were sent from marketing department ID. यानी कि marketing department की अगर मैं specifically बात करें, in marketing department, let us say number of directors are equal to X, number of managers are equal to Y, and number of associates is equal to Z. ठीक है, सो हमें x plus y plus z को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। जबकि हमें क्या पता है कि टोटल नंबर ऑफ ईमेल्स रिसीव दैट इज इक्वल 29, और ये वैल्यू क्या होगा हमारा? 5 फॉर डायरेक्टर्स, 3 फॉर मैनेजर्स एंड 2 फॉर एसोसिएट्स, तो 5x प्लस 3y प्लस 2z, दिस इज इक्वल 29, दिस इज इक्वल 29। ओके, और हमें मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को, तो कब मैक्सिमाइज होंगे? जबकि z का वैल्यू, एसोसिएट्स का वैल्यू मैक्सिमाइज हो, बिकॉज एक एसोसिएट का ईमेल विल बी ओनली ट्रांसफर्ड टू 2 डिपार्टमेंट्स, isn't it so? So that is why we will be maximizing number value of z if possible. तो अगर x और y को 1 1 पुट कर दें, तो 5 into 1 plus 3 into 1 8 आ गया, 8 plus 2z is 29, 2z is equal to 21, यानी कि z is equal to 10.5 आ गया। बट ऑब्वियसली ये इंटीजर तो होगा, इंटीजर ही होगा, फ्रैक्शन तो होगा नहीं, तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो यानी कि हमें x और y में से किसी एक वैल्यू को 1 से बड़ा करना पड़ेगा। अब किस वैल्यू को बड़ा करेंगे? जो वैल्यू जहां पे हमें, जहां से अल्टीमेटली फिर भी हम z को मैक्सिमाइज कर पाए, तो हम किस वैल्यू को बड़ा करेंगे? वील बी इनलार्जिंग y इंस्टेड। तो y को 2 कर देंगे, x को 1 ही रखेंगे, y को 2 कर देंगे, बिकॉज y का कोफिशिएंट क्या है? 3 है, तो z पे इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो जैसे ही y को 2 कर दिया, तो 5 प्लस 6 11 आ गया, 29 माइनस 7 18 आ गया, 2z इज इक्वल टू 18, z हमारा आ जाएगा इक्वल टू 9। सो मैक्सिमम एम्प्लॉइज विल बी व्हेन डायरेक्टर्स आर इक्वल टू 1, मैनेजर्स आर इक्वल टू 2 एंड एसोसिएट्स आर इक्वल टू 9, यानी कि टोटल एम्प्लॉइज विल बी 12। मैक्सिमम वैल्यू फॉर एम्प्लॉइज विल बी इक्वल टू 12 इन दिस केस। ओके, क्लियर है? और क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, तो हमें बाकी डिपार्टमेंट की जो भी डेटा गिवन है उससे कोई कंसर्न नहीं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके लिए हमें डेटा भी गिवन है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए, और 12 हो भी सकते हैं, वहाँ पे कोई इशू है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि हमारा जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी था दैट वाज इक्वल टू 35, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे। अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मान लो जस्ट इन केस, अगेन एक बार डिस्कस तो कर ही लेते हैं कि मान लो जस्ट इन केस ये 19 होता, तब फिर कंसर्न हो सकता है कि हमें ए बी सी को भी मिनिमम 3 3 तो रखना था, तब फिर डी हमारा मैक्सिमम 10 हो पाता। एक सेकंड, कौन सा डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का वैल्यू था बी, ठीक है, तो बी को मैक्सिमम 10 रख पाते भाई। अगर हम ए सी डी को 3 3 भी रखते तब भी हम बी को मैक्सिमाइज करके 10 कर पाते, तो अगर ऐसा कंस्ट्रेंट होता तब तो प्रॉब्लम हो जाती, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कैन बी इक्वल टू 12। अच्छा, अगर क्वेश्चन मिनिमम पूछता तो क्या करते? उस केस में हम डायरेक्टर्स को मैक्सिमाइज करते। डायरेक्टर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? अगर हम डायरेक्टर्स को 5 कर दें, क्या पॉसिबल होगा? 5 इंटू 5 25 हो गया, 25 के बाद में 4 बच गया, तो डेफिनेटली 1 1 तो रखना पड़ेगा, तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो डायरेक्टर्स को 4 कर दें,
5 into 4 20 हो गया, 9 बच गया। तो 9 के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 1 मैनेजर एंड फिर हमारे पास 3 बच गए एसोसिएट्स। तो 4 + 1 + 3 यानी कि 8 विल बी नंबर ऑफ मिनिमम एम्प्लॉइज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड मैक्सिमम इज इक्वल टू 12। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। It is known that 27 emails received cumulatively across all the departments were sent from departmental ID of sales department. So what could be the number of associates in the sales department if no department has more than 4 managers? What could be number of associates in the sales department? और sales department का number हमें given है 9, लेकिन total employees are equal to 9. So directors plus managers plus associates D plus M plus A, this is equal to 9 और 27 emails receive हुए यानी कि 5D plus 3M plus 2A is equal to 27. Again multiply this by 2 और subtract कर 2D plus 2M plus 2A is equal to 18. सब्ट्रैक्ट करते ही वैल्यू आ जाएगा हमारा 3D plus M is equal to 9. ओके, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे? अब हमें M की वैल्यू मिनिमम 1 रखना पड़ेगा, D का वैल्यू मिनिमम 1 रखना पड़ेगा। सो इफ D is equal to 1, तो 3D is equal to 3, M will be equal to 6. If D is equal to 2, M will be equal to 3. If D is equal to 3, M will be equal to 0. Of course, managers cannot be equal to 0. And also, as per the condition, number of managers cannot be more than 4. The number of managers must be less than or equal to 4. So they cannot be equal to 6 either. तो एक ही केस पॉसिबल है when directors are equal to 2 and managers are equal to 3. तो एसोसिएट्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि टोटल एम्प्लॉइज आर इक्वल टू 9, डायरेक्टर्स आर 2, मैनेजर्स आर 3, 2 + 3 5 हो गया, यानी कि एसोसिएट्स विल बी इक्वल टू 4. So only one case is possible when associates are equal to 4, managers are 3 and directors are equal to 2. Associates का नंबर पूछा है, so that will be equal to 4, option E. So you can definitely determine this case as well, that there will be exactly 4 associates, 3 managers and 2 directors in total. Is that clear? So this is our whole set. I believe कि मजा आएगा इस सेट को करने में, और तुमसे कई क्वेश्चन में, 1-2 क्वेश्चन में डेफिनेटली गलती हुई होगी शायद समझने में, बट मैंने कोशिश किया कि हर वैरायटी के क्वेश्चंस को लो, सो दैट ये एक सेट तुम्हारे 2 सेट के बराबर हो, तुम अच्छे से क्लियरली समझ सको कि ऐसे सेट्स में कंस्ट्रेंट क्या होता है और कैसे उन कंस्ट्रेंट्स के बेसिस पे हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अपना कमेंट जरूर शेयर करना फीडबैक में, तुम्हें सेशन कैसा लगा और कितना लर्निंग हुआ तुम्हारा, और क्या ये सारे के सारे क्वेश्चंस तुम अपने एंड पे सॉल्व कर पाए थे करेक्टली। अगर कर पाए थे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए थे तो आई बिलीव अब सीख लिया होगा, और आगे जब भी तुम ऐसा कोई सेट प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे चीज़ों को एक्यूरेटली हैंडल कर पाओगे। इतना ही रखते हैं सेशन में, और अगर सेशन पसंद है उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।